Jai Hind. Today's lecture we will implement OR NOR gate with the help of ECL logic family. ECL mean emitter coupled logic family. ECL is a non-saturated logic family. In the case of ECL logic family, transistor will operate in active region and cutoff region. If transistor is on, I will say transistor is in active region. And if transistor is off, I will say transistor in cutoff region. This is the fastest logic family because it is operating in active region and cutoff region, and it is a non-saturated logic family. In the case of saturation logic family, transistor operate in saturation and cutoff region. If transistor is on, it is in saturation. If transistor is off, it is in cutoff region. In the case of saturation region, speed is very less. The main reason is that when transistor is on, that is in saturation region, a lot of charge carrier stored in base region. When you have to turn off the transistor, it will not immediately turned off until stored charge carrier in the base region are not removed. ट्रांजिस्टर will not be turned off. जब तक बेस में से stored charge carrier रिमूव नहीं होंगे, ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होगा, that is ट्रांजिस्टर कट ऑफ में नहीं जाएगा. And in the case of ECL logic family, transistor never goes in saturation state. It always operate in active and cut off region. That is the reason it is fastest logic family. Up class, we have to implement two input OR NOR gate with the help of ECL logic family. Here B will apply inputs. This is A and this is B. These are two transistors Q1A, Q1B. We are using these transistors in parallel. This is another transistor Q2. This is NPN. Q2 ट्रांजिस्टर के बेस में हम फिक्स रेफरेंस वोल्टेज 1.3 वोल्ट अप्लाई करेंगे. दिस इज अमीटर कपल लॉजिक फैमिली. अब क्लास, इन तीनों ट्रांजिस्टर के अमीटर को हम इस पॉइंट में कपल कर रहे हैं. दिस इज अमीटर रजिस्टर. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली. अब क्लास, ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं जिनको हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं, इनके कलेक्टर को हमने इस पॉइंट में कनेक्ट किया है और ये जो आउटपुट है इसको हम Q3 ट्रांजिस्टर के बेस में अप्लाई करेंगे. एंड दिस इज Q2 ट्रांजिस्टर. इसका जो कलेक्टर टर्मिनल है दैट इज दिस वन. इसको एज ए इनपुट हम Q4 ट्रांजिस्टर में अप्लाई करेंगे. ये जो तीन ट्रांजिस्टर हैं Q1A, Q1B एंड Q2, दीज आर फॉर्म डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोला? क्लास, ये जो टू ट्रांजिस्टर हैं Q1A एंड Q1B जिसके बेस में हमने इनपुट अप्लाई करनी है, यहाँ जो कलेक्टर आउटपुट है इसको हमने Q3 में अप्लाई किया. इसी तरह से Q2 ट्रांजिस्टर की आउटपुट को हमने Q4 के इनपुट में अप्लाई किया है. तो देयर आर टू आउटपुट्स. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर. And these two transistors Q3 and Q4, these are emitter follower. In the case of emitter follower, emitter voltage is approximate equal to base voltage. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा approximate 0.8 वोल्ट का होगा. जब Q3 ऑन होगा ये एक्टिव में होगा. दिस इज ए पीएन जंक्शन एक्टिव रीजन में. अप्रोक्सीमेट बेस टू emitter जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 to 0.8 वोल्ट होगा. आई एम टेकिंग 0.8 वोल्ट. अब क्लास, Q3 की जो आउटपुट है दैट इज दिस वन. इस आउटपुट को विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम यहां पर लेंगे और ये जो आउटपुट होगी दिस इज ए नॉर गेट. y इज इक्वल टू a प्लस बी बार. इसी तरह से Q4 अमीटर की जो आउटपुट है दैट इज दिस वन. इसको विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम यहां पर लेंगे और ये जो आउटपुट होगी इट इज इक्वल टू OR ऑपरेशन. इन द केस ऑफ ECL लॉजिक फैमिली वी यूज नेगेटिव सप्लाई. This is a minus 5.2 volt which we are applying. In the case of ECL logic family, logic 0 correspond to minus 1.7 volt. इसी तरह से logic 1 correspond to minus 0.9 volt. अब क्लास, logic 1 की वोल्टेज logic 0 की वोल्टेज से ज्यादा है. यहाँ पर वोल्टेज है नेगेटिव में. नेगेटिव में जो नंबर कम होता है वो ज्यादा होता है. तो सिंपली minus 0.9 volt is greater than minus 1.7 volt. And R1 resistor is 300 ohm, R2 resistor is 300 ohm.
These two resistors, that is 1.5 kilo ohm, we are using between a meter of both transistor Q3 and Q4 and negative power supply which is equal to minus 5.2 volt, and this is a ground, और जो आउटपुट होगी विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम लेंगे। इनिशियली ए और बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। 0 कोरस्पॉन्ड टू माइनस 1.7 वोल्ट। इसी तरह से ये जो 0 है दिस इज इक्वल टू माइनस 1.7 वोल्ट। अब क्लास Q2 में हम फिक्स रेफरेंस वोल्टेज माइनस 1.3 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ये जो माइनस 1.3 वोल्ट है इट इज ग्रेटर देन माइनस 1.7 वोल्ट। नेगेटिव में क्या होता है, जो वोल्टेज ग्राउंड के जितने ज्यादा क्लोज होगी वो वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ए बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है ये Q1A और Q1B के कंपैरिजन में मोर फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। सिंपली Q2 बिकम मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q1A एंड Q1B ट्रांजिस्टर, जिसके कारण क्या होगा, Q2 पहले ऑन हो जाएगा। जैसे Q2 ऑन हो जाएगा ये Q1A और Q1B को ऑन होने नहीं देगा। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, जैसे ए और बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, इसी तरह से Q1B भी ऑफ हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ऑन क्यों होगा, इट बिकम मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q1A एंड Q1B, और जिसके कारण Q1A और Q1B ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन हो नहीं पाएंगे। अब क्लास, अब जैसे ही ये ऑन है तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा इसके कारण करेगा, वो क्या होगा, अमीटर करंट। दिस इज अ कलेक्टर करंट, और अप्रोक्सीमेट ये दोनों करंट इक्वल होंगे। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं IC इज इक्वल टू IE। अब क्लास अगर मैं इस पाथ को ऊपर देखता हूं तो एक करंट यहां से आएगा, एक करंट इस डायरेक्शन में जाएगा जो Q4 में, दूसरा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज IC। अब क्लास ये नेगेटिव सप्लाई है, दिस इज माइनस 5.2 वोल्ट, तो पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर कनेक्ट होगा, दिस वन, दैट इज यहां पर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। दिस इज ए माइनस 5.2 वोल्ट, तो दिस इज ए नेगेटिव, तो अगेन यहां पर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। अब क्लास होगा क्या, जैसे ही Q2 ऑन होता है इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.9 वोल्ट। यहां पर रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की वैल्यू इस तरह से ली होती है, जैसे Q2 ऑन होगा तो उस केस में R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.9 वोल्ट। अब क्लास मैं इस पाथ को देखता हूं, अब ये जो Q4 ट्रांजिस्टर ये एक्टिव रीजन में होगा, तो यहां पर जो ड्रॉप होगा वो होगा 0.8 वोल्ट। अगर मैं पोलैरिटी देखता हूं, दिस इज ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव सप्लाई यूज कर रहे हैं तो ऊपर का होगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब यहां पर आउटपुट देखते हैं, आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम इस तरह से ले रहे हैं, तो आउटपुट कैसे होगी, पहले तो ये वोल्टेज क्या होगी, माइनस 0.8 वोल्ट। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अगेन इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा माइनस पॉजिटिव, दैट इज माइनस 0.9, टोटल हुआ माइनस 1.7 वोल्ट। यहां पर आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड मिलेगी माइनस 1.7 वोल्ट, और माइनस 1.7 वोल्ट क्या होता है, लॉजिक 0, तो Q4 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से Q3 की आउटपुट देखते हैं। अब क्लास जैसे ही A और B में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये दोनों ऑफ थे, तो सिंपली इस पॉइंट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगेन यहां पर R1 की वैल्यू इस तरह से ली गई है, जैसे Q1A और Q1B ऑफ होंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.1 वोल्ट। और मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, क्लास ये है पावर सप्लाई 5.2 वोल्ट, दिस इज ए नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, Q3 रहेगा एक्टिव, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.8 वोल्ट।
अब क्लास इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? सप्लाई है 5.2 वोल्ट माइनस ये जो 0.8 माइनस 0.1 वोल्ट जो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। अब यहां पर जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू हम ग्राउंड लेंगे, दिस इज ए 0.8। अब पोलैरिटी कैसे लेंगे? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अब आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड लेंगे, डेट इज माइनस 0.8 माइनस इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 0.1 माइनस प्लस। हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां पर हम नेगेटिव सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं माइनस 5.2 वोल्ट, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ऊपर होगा, और जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं। तो 0.8 माइनस 0.8 माइनस 0.1 डेट इज माइनस 0.9, और माइनस 0.9 होता है लॉजिक 1 के बराबर, तो Q3 यहां पर मिलेगा लॉजिक 1। नेक्स्ट ए में लॉजिक 0, बी में लॉजिक 1। 0 मतलब माइनस 1.7 वोल्ट, और लॉजिक 1 मतलब माइनस 0.9 वोल्ट, और रेफरेंस इज माइनस 1.3 वोल्ट। अगर क्लास में इन तीनों वोल्टेज को देखता हूं, ए बी और रेफरेंस वोल्टेज, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन होगी? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और वो है 0.9 वोल्ट। इसके कारण क्या होगा? Q1B बिकम मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q1A एंड Q2, जिसके कारण क्या होगा? Q1B कंडक्ट करेगा, Q2 कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये कट ऑफ में रहेगा, सिंपली ये ऑफ रहेगा। इसी तरह से ये भी ऑफ रहेगा, मतलब ये कट ऑफ में रहेगा। अब क्लास ये ऑन रहेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? मीटर करंट इस डायरेक्शन में आगे यहां पर आ जाएगा, ये मीटर करंट IE। अगेन दिस इज ए IE, दिस इज ए कलेक्टर करंट, और मैं ये ज्यूम कर रहा हूं IC इज इक्वल टू IE। अब क्लास जैसे ही कोई ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है तो ये जो रजिस्टर R1 है इस पे जो ड्रॉप होगा वो होगा 0.9 वोल्ट। यहां पर R1 इस तरह से सिलेक्ट किया है कि जब भी कोई ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जैसे Q1 भी कंडक्ट कर रहा है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.9 वोल्ट होगा, और वो किसके कारण होगा? इस बैटरी के कारण। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। तो अगेन करंट कैसे फ्लो करेगा? ये करंट किसके बराबर होगा? एक करंट इस डायरेक्शन में जाएगा Q3, एक करंट ये है जो IC है। अब यहां पर ड्रॉप होगा 0.9 वोल्ट, दिस इज ए प्लस, दिस इज माइनस। अगेन Q3 ऑन होगा, ये एक्टिव में रहेगा, यहां पर ड्रॉप होगा वो होगा 0.8। एक्टिव में बेस टू अमीटर जो ड्रॉप होता है वो होता है 0.8, और जो बाकी का ड्रॉप है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा 1.5 किलो ओम, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 0.9 माइनस 0.8, विच इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। अब क्लास Q3 की आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम लेंगे तो क्या होगी आउटपुट? दिस इज माइनस 0.8, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अगेन यहां पर जो ड्रॉप है वो है 0.9, दैट इज माइनस 0.9, इट इज इक्वल टू माइनस 1.7, और माइनस 1.7 इज लॉजिक 0, तो Q3 की जो आउटपुट होगी वो होगी लॉजिक 0। Q4 का देखते हैं। अब क्लास Q2 है ऑफ, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब यहां पर जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जब कोई ट्रांजिस्टर ऑफ होगा उस टाइम पे R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.1 वोल्ट। अगर ये ट्रांजिस्टर Q2 ऑन रहता तो उस केस में R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होता वो होता 0.9 वोल्ट। R1 और R2 और डिफरेंट कंपोनेंट इस तरह से हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर Q2 ऑफ रहता जैसे इस केस में है तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप 0.1 वोल्ट होता, अगर ऑन रहता तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 0.9 वोल्ट होता। अब क्लास तो यहां पर है 0.9, अगेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। Q4 रहेगा एक्टिव मोड में, यहां पर मीटर टू बेस ड्रॉप होगा 0.8, और जो रिमेनिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस रहेगा। अब क्लास आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड लेंगे तो आउटपुट क्या होगी?
माइनस प्लस दैट इज माइनस 0.8, दिस इज माइनस 0.1। पोलैरिटी कैसे होगी? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो माइनस 0.1 दैट इज माइनस 0.9, माइनस 0.9 इज लॉजिक 1। तो Q4 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी लॉजिक 1। नेक्स्ट केस 1 0, ए में 1 बी में 0। क्लास ये केस क्या होगा? ये सेकंड केस का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे 1 0 अप्लाई किया तो उस केस में ये Q1A ट्रांजिस्टर है, इट विल बिकम मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q1B एंड Q2 ट्रांजिस्टर। तो जिसके कारण क्या होगा? ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑन है। तो सिंपली यहां पर ड्रॉप कितना होगा? जब ऑन होता है तो यहां पर होगा 0.9 वोल्ट, और पोलैरिटी क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो दिस इज पॉजिटिव। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक करंट जाएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा करंट जाएगा इस डायरेक्शन में। Q3 होगा एक्टिव मोड में, यहां पर ड्रॉप होगा 0.8, और जो रिमेनिंग ड्रॉप होगा 5 माइनस 0.8 माइनस 0.9, वो ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। अब सिंपली आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड देखते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पोलैरिटी कैसे डिसाइड हो रही है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉप, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। आउटपुट देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस 0.8, यहां पर ड्रॉप होगा माइनस 0.9 दैट इज माइनस 1.7, माइनस 1.7 इज लॉजिक 0। तो Q3 की आउटपुट मिलेगी लॉजिक 0। इसी तरह से Q4 देखते हैं। क्लास ये ऑफ है, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सिंपली यहां पर जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और जब ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ रहेगा तो मैंने पहले बोला है यहां पर ड्रॉप कितना होगा? 0.1। यहां पर ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट की गई हैं, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तब कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर साइड रजिस्टर यूज कर रहे हैं वहां पर ड्रॉप होगा 0.1 वोल्ट। अगेन यहां पर ड्रॉप 0.8 वोल्ट, ये एक्टिव मोड में है, बेस टू मीटर ड्रॉप होगा 0.8 वोल्ट। तो आउटपुट क्या रहेगी? माइनस 0.8 वोल्ट माइनस 0.1 दैट इज माइनस 0.9, माइनस 0.9 मीन लॉजिक 1। तो Q4 आउटपुट 1। लास्ट ए में 1 बी में 1, ए में 1 अप्लाई किया, बी में 1, 1 मतलब माइनस 0.9 वोल्ट, 1 मतलब माइनस 0.9 वोल्ट। अब क्लास माइनस 0.9 वोल्ट इज ग्रेटर देन माइनस 1.3 वोल्ट। इसके कारण क्या होगा? अब ये जो ट्रांजिस्टर हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं Q1A एंड Q1B, इन दोनों ट्रांजिस्टर की बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, मतलब इन ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर मोर फॉरवर्ड वाइज होंगे एज कंपेयर टू बी रेफरेंस, तो जिसके कारण क्या होगा? Q1A और Q1B कंडक्ट करेगा और Q2 है ये ऑफ हो जाएगा, दिस इज ऑफ एंड दिस इज ए ऑफ। अब क्लास जैसे मैं बोल रहा हूं मोर फॉरवर्ड वाइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करता हूं। जैसे ए को देखता हूं मैं, ए में क्या अप्लाई किया? माइनस 0.9 वोल्ट, बी में भी माइनस 0.9 वोल्ट किया है, तो यह नेगेटिव बैटरी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? इस बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। अगर इन दोनों बैटरीज का मैं नेट रिजल्टेंट देखता हूं, दिस ये नेगेटिव दिस ये पॉजिटिव, यहां पर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सिंपली जो बैटरीज होंगी वो क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सिंपली जो बैटरी की पोटेंशियल होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, डेट इज माइनस 5.2 प्लस 0.9 वोल्ट। जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा माइनस 4.3 वोल्ट। तो इसके कारण क्या होगा? रिजल्टेंट बैटरी बनेगी माइनस 4.3 वोल्ट। अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं इन दोनों को, तो दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ए माइनस 4.3 वोल्ट। अब क्लास नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? P के साथ। इसी की तरह से N किसके साथ कनेक्टेड है? N थ्रू दिस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइस है। Q1A भी फॉरवर्ड वाइस होगा, Q1B भी फॉरवर्ड वाइस होगा, पर Q2 लेस फॉरवर्ड वाइस होगा। उसका रीजन क्या है? दिस इज अगेन माइनस 1.3,
तो ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये भी यहाँ पर कनेक्ट होगा इस तरह से। जब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो यहाँ पर क्या तो रिजल्टेंट क्या होगा, -3.9 वोल्ट, -5.2 प्लस 1.3। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल अटैच हैं और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सिंपली जो बैटरी की वोल्टेज है वो होंगी सब्ट्रैक्ट। तो 5 -5.2 प्लस 1.3 रिजल्टेंट आएगा -3.9। तो मैं सिंपली सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव, एंड दिस इज -3.9 वोल्ट। अब क्लास यहां देखो, यहां पर जो बैटरी थी वो थी -4.3। अब यहां पर बी रेफरेंस को अगर मैं लेता तो रिजल्टेंट आना था -3.9 वोल्ट। इसी कारण Q1A और Q1B मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q2, जिसके कारण क्या होना था, जैसे इन दोनों ने ऑन हो जाना था, इन्होंने Q2 को ऑफ ही रहने देना था, Q2 को ऑन होने नहीं देना था। और जो वोल्टेजेस होता है हम बेस और अमीटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। इसी तरह से क्लास जैसे ए में 1 और बी में 1 करते, 1 मतलब -0.9 वोल्ट, -0.9 वोल्ट ग्रेटर देन -1.3 वोल्ट, तो Q1A एंड Q1B बिकम मोर फॉरवर्ड वाइज एज कंपेयर टू Q2, जिसके कारण Q2 ने रहना था ऑफ। दिस इज ऑफ, दिस इज ऑफ। जैसे इसने ऑफ रहना था तो R2 के अक्रॉस जो ड्रॉप होना था वो होना था 0.1, और पोलैरिटी कैसे होनी थी, प्लस नेगेटिव। क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस बैटरी के कारण फ्लो करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यहां पर होना था, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी ऐसे कनेक्ट होंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना था, नीचे तो फ्लो हो नहीं सकता। तो यहां पर ड्रॉप कितना है, 0.8 वोल्ट प्लस टू नेगेटिव। अब आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड क्या होगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू -0.8 -0.1, दैट इज -0.9, -0.9 इज लॉजिक 1। तो Q4 की आउटपुट लॉजिक 1 मिलनी थी। अब क्लास यहां पर देखते हैं, ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, यहां पर जो अमीटर करंट होगा वो यहां पर पास करेगा, दिस इज IC। अगेन एक करंट इस डायरेक्शन में जाना है, दूसरा यहां पर जाना है, वो है IC। इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, अगर ये ऑन है, इस केस में अब दोनों ऑन है, तो यहां पर ड्रॉप होगा 0.9 प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, ये एक्टिव में है तो यहां पर ड्रॉप होगा 0.8 बेस टू अमीटर। तो यहां पर आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड कितनी होगी, -0.8 -0.9, दैट इज -1.7, -1.7 इज लॉजिक 0। अब क्लास Q3 की आउटपुट को देखो, दिस इज नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट 0 होंगी तभी आउटपुट 1 मिलेगी, रेस्ट केसेस में 0। तो Q3 में जो आउटपुट मिल रही है वो है नॉर गेट। इसी तरह से Q4 देखो, दिस इज आउटपुट ऑफ और गेट। और गेट में जब दोनों इनपुट 0 होती हैं तभी आउटपुट 0, बाकी केस में आउटपुट 1। simply be implemented OR gate and NOR gate with the help of ECL logic, and in the case of ECL logic family, ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑपरेट इन कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा मैं उसको बोलूंगा वो कट ऑफ रीजन में है, और जब वो ऑन होगा तब हम उसको बोलेंगे वो एक्टिव रीजन में है, वो सैचुरेशन में कभी नहीं जाएगा। और जब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं जाएगा तो इसके कारण ट्रांजिस्टर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो ECL इज ए फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली।